सौरक्षेत वित्ततं यतिच यतिच अक्षिणो वृत्ततं क्षीणो वृतस्तु हतो हत. The meaning of the shlok was that wealth may come and go, but if character is lost, everything is lost. Firstly, I have a very simple question for everyone. If character and success were standing at the two different doors, which one would you choose? Please raise your hand if your answer is character. Pardon the question. Will you be a bit louder, please? Question was, if success and character were standing at the two different doors, which one would you choose? If Please raise your hand if your answer is character. Now raise your hand if your answer is success. Thank you for your response. Most of us choose the character today. But what if the success comes with the shortcuts? Will we make the same choice? Today, our team invites you to think beyond the marks, money and the profession. Because a career is what you were paid for, but the character is what you were made for. A very good morning to the respected panels, faculty members and my dear friends. I am Astha Joshi and together with my wonderful team member Riddhi, Nutan, Vansh, Somesh and Jatin. We are here to present our thoughts on the topic character before career. हम सब आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सबको सक्सेसफुल बनना है. किसी को अच्छा प्रोफेशन चाहिए, किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो किसी को अच्छी सैलरी वाला जॉब चाहिए. पर इन शॉर्ट सबको सक्सेस चाहिए. पर इस सक्सेस की रेस में हम एक चीज़ भूलते जा रहे हैं, वो है अपना कैरेक्टर. लेकिन हमने कैरेक्टर को करियर से पहले क्यों रखना चाहिए? ये समझने से पहले समझते हैं कि कैरेक्टर और करियर इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है. नाउ व्हाट इज़ करियर? करियर वो है जो हम सब बनाना चाहते हैं. हमारे गोल्स, हमारी अचीवमेंट, हमारा प्रोफेशन, इन शॉर्ट सक्सेस जो हम सब चाहते हैं. और कैरेक्टर मतलब हमारी रियलिटी, हमारे वैल्यूज़, हमारे ऑनेस्टी और हमारा बिहेवियर. जैसे कि हमें पता है कोई भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना खड़ी नहीं रह सकती, वैसे ही कोई भी स्ट्रॉन्ग करियर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बिना खड़ा नहीं रह सकता. लेकिन अभी भी आपको सवाल होगा कि हमने कैरेक्टर को करियर से पहले ही क्यों रखना चाहिए. इसे और अच्छी तरीके से समझाने आ रही है हमारी नेक्स्ट टीम मेंबर Nutan. So please welcome Nutan, who will explain the core idea of our topic. Thank you. Till now, we have seen that character is our foundation and career is our destination. So let's understand this with the example of tree. This tree represents our whole life. The roots of the tree represents our character, means our honesty, integrity and values. The branches of the tree represents our achievements, success and goals. And the leaves of the tree represents our career, which people can easily see. People often see our job, salary and position, but they do not see our root. Yet these roots are what make the whole tree strong. If roots of the tree are strong, then the branches will grow well and the leaves remains green and healthy. But this means that if our character is strong, then our achievement, goal and success will grow well and reaches to the greater height. But if our character is weak, then our career will not last for a long time. करियर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन कैरेक्टर हमें उन ऊंचाइयों तक बनाए रखता है. So knowing this theory is not enough. So let's understand how character affects the career with some real life examples, and these real life examples will be presented by our next speaker Riddhi. Thank you. थैंक यू नूतन. अब तक हमने देखा कि कैरेक्टर कैसे हमारे करियर की फाउंडेशन है, लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छा करियर ही हमें सक्सेस की गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं. आइए दो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा हो तो वह हमें कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है, वही अगर कैरेक्टर अच्छा ना हो तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है. फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की टॉप 4 आईटी कंपनीज में से एक हो, जिसे लोग अपने सक्सेस का एग्जाम्पल मानते हो. लेकिन इसके पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छुपा था जिसने पूरी स्टोरी ही बदल दी. सो लेट मी वेलकम यू ऑल टू द स्टोरी ऑफ सत्यम स्कैम. मैं बात कर रही हूँ सत्यम कंपनी और उनके फाउंडर रामलिंगा राजू की, जिन्होंने 7,500 फेक इन्वॉइसेस दिखाए और 5,000 करोड़ का फेक इमेजिनरी कैश दिखाया जो कभी अकाउंट्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं था. फिर क्या, 7 जनवरी 2009
एक ऐसा कन्फेशन लेटर आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो कन्फेशन लेटर था रामलिंगा राजू का, जिसमें लिखा था, आई वॉज राइडिंग अ टाइगर एंड आई डेंट नो हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बींग ईटन। सिर्फ एक कन्फेशन लेटर और पूरे कंपनी के शेयर 77% क्रैश हो गए। लेकिन व्हाट्स द बिग लेसन, हमें क्या पता चलता है इससे? यही कि रामलिंगा राजू के पास ग्रेट करियर था, ब्रिलियंट माइंड था, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल ज़ीरो। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा कैरेक्टर वीक हो तो हमारे करियर का गिरना तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर स्टोरी का एंड सैड होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टोरीज़ ऐसी भी होती है जो हमें बताती है कि अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो वह हमें मौत के मुंह से भी खड़े होने की शक्ति दे सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू ऑल इनटू द फील्ड ऑफ क्रिकेट। इमेजिन कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप। एक ऐसा प्लेयर जो ब्लड वोमिटिंग करते हुए और सीवियर चेस्ट पेन सफ़र करते हुए भी अपने देश के लिए जी जान से खेल रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने देश को इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाया। मैं बात कर रही हूँ युवराज सिंह की। लेकिन मैच होते ही एक ऐसी चीज़ बाहर आई जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही सहम गई। उन्हें हुआ था स्टेज 1 लंग कैंसर। लेकिन जहाँ कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखकर डर जाते हैं, वहाँ ही युवराज सिंह ने अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन सबके मदद से कैंसर जैसी भयानक बीमारी तक को हरा दिया और 2012 में इंडियन टीम में एक धमाकेदार कमबैक किया। युवराज सिंह हमें सिर्फ यही नहीं सिखाते हैं कि कैरेक्टर हमें करियर बनाने में मदद करता है, लेकिन ये भी सिखाते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो हमें हमारे बुरे वक्त में भी खड़े रहने की शक्ति देता है। ये दो स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? यही कि अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो हमें वो नीचे से भी ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अगर कैरेक्टर वीक हो तो स्काई हाई करियर को भी गिरने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कैरेक्टर डजंट जस्ट बिल्ड योर करियर, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारा ड्रीम करियर यानी कि CA से भी कनेक्टेड है। और इसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी वंश को। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Vansh. Today I am talking about why character is more important than career. But you have ever wondered why this topic is so important for us as a commerce student and as a future chartered accountant? Anyone? Question. The answer is simple, because the CA profession is not just about calculation, audits and balance sheets. It's also about building one foundation, that is trust. हम सभी का सपना एक सफल CA बनने का होता है। हम सभी नॉलेज भी गेन करते, अपनी स्किल को भी डेवलप करते, बल्कि अपने करियर को बनाने में बहुत एफर्ट्स भी लगाते। मगर इस सबसे भी ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होता है हमारा कैरेक्टर। एक CA सिर्फ पैसा, ऑडिट्स और अकाउंट को तो नहीं संभालता, बल्कि लोगों की ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी उठाता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई और अपने बिजनेस से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए एक CA पर भरोसा करते। ये भरोसा हमारी मार्क्स या हमारी डिग्री देखकर तो नहीं बनता, बल्कि हमारी ऑनेस्टी और हमारा कैरेक्टर देख के बनता है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टर बिफोर करियर। करियर हमें सफलता दिलाता है, मगर कैरेक्टर हमें एक रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट दिलाता है। करियर हमें भले एक पोजीशन दिलाता है, मगर कैरेक्टर हमें एक आइडेंटिटी दिलाता है। और वैसे भी एक अच्छे CA की पहचान उसके नॉलेज से होती है, मगर एक महान CA की पहचान उसके कैरेक्टर से होती है। और इस जर्नी में हमसे बहुत सारे मिस्टेक और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी निकलते हैं। और ये सब बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सोमेश और जतिन को। थैंक यू। Thank you, Vansh. Every mistakes teach us lesson. Here are 3 common mistakes, and that solution help to us better person. The first mistake is choosing money over value. Today, many people think that earning more money means being successful. But if we earn it by lose our honesty, then that success has no meaning. The solution is choose integrity over shortcuts. Success may come with slowly, but it comes with honesty. It will stay us forever. The second mistake is cheating for success. Some people cheat to get good marks, a good job, or a quick decision. It may help for a short time, but it never gives us real respect. The solution is practice honesty every day. The character is built through your daily choices. But being honesty today makes us better person tomorrow. The third mistake is ignoring our responsibilities. When we don't accept our mistake or avoid our duties, people slowly stop trusting us.
The solution is always be accountable. We should accept your mistakes, learn from them, and fulfill your responsibility sincerely. Money can give us success. But character gives us respect. Career can make us successful. But character gives us trustworthy. So never sacrifice your character for a temporary success. लेसन मिलते हैं कि पहला, रेगुलेटिव ऑफ रेपुटेशन. हमारी रेपुटेशन बनाना आसान नहीं होता. इसे बनाने में सालों लग जाते, लेकिन एक गलत काम, एक गलत फैसला इसे कुछ मिनटों में हमसे ख़त्म कर सकता है. इसलिए याद रखें, हमारा कैरेक्टर ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है. दूसरा, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड. एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड, एक फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते लोगों का ट्रस्ट जीतना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हमें हमारा काम ईमानदारी और लगन से करना चाहिए. तीसरा, कैरेक्टर इज़ योर ट्रू आइडेंटिटी. लोग हमें हमारे कपड़े, मार्क्स या जॉब से नहीं बल्कि हमारे कैरेक्टर से पहचानते हैं. इसलिए हमें हमारा बिहेवियर, हमारी ईमानदारी और संस्कार अच्छे रखने चाहिए. इन सब से हमें ये पता चलता है कि करियर अपने को सफल बनाता है, लेकिन कैरेक्टर अपने को महान बनाता है. इसके बाद मैं मेरे टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूँगा. करियर बनाओ, करियर के साथ कैरेक्टर बनाओ. थैंक यू. Now we would like to conclude our PPT. Do you have any questions? यस वी डू है, बट हम क्वेश्चंस पूछे उससे पहले ये जानना था कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे हो चूज सक्सेस और कैरेक्टर. तो मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि वो अभी भी वही सोच रहे हैं कि दे हैव चेंज देयर थॉट. थे ना? अरे हाथ उठाया था ना. अरे इधर उधर मत देखो, मैंने देखा था. सक्सेस और कैरेक्टर. सुना ही नहीं अच्छा, सुना ही नहीं. एक्चुअली क्या है यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वो जो माइक नहीं, एक इधर साइड का माइक वर्क नहीं कर रहा था, एक माइक अच्छा वर्क अच्छा हो सकता है. ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत है यार? नाइस प्रेजेंटेशन गाइस. Thank you, sir. वो सुना ही होगा आपने, व्हेन मनी इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, सॉरी, व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. ठीक है, तो नाइस प्रेजेंटेशन. कुछ खास तो नहीं है क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास. सिर्फ एक क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब व्हेन आई रिलेट टू कैरेक्टर द ओनली थिंग जो सबसे पहले मेरे को दिमाग में स्ट्राइक होती है एग्जांपल के लिए, जिसमें एक ही एग्जांपल में दोनों रिलेट कर सकता था, बैड और वाइट. एक चीज़ जो मेरे दिमाग में पर्सनली आते हैं जब आप कैरेक्टर के बारे में बोलते हो तो इज़ चेक. काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था. कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, बट मेरा खुद का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को अगर पूछा जाए कि व्हाट थिंग्स कम फर्स्ट टू योर माइंड जब कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए, तो आई वुड से प्रभु श्री राम एंड रावण. सबसे बड़ा मेरे लिए वो एग्जांपल है लाइफ का कि कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हु बिगर देन हिम, राइट. बढ़िया प्रेजेंटेशन था, अच्छा था. कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास तो नहीं है. आई विल फॉरवर्ड इट टू सर. सर पूछें. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मार्क्स कैसे दे. मैं पीछे के प्रेजेंटेशन को बार बार इवेल्युएट करके मैंने नए प्रेजेंटेशन को मार्क्स दे रहा हूँ, पीछे कम कर रहा हूँ या आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ. मुझे तो ऐसा लगता है M² को 2 फर्स्ट डिक्लेयर होना चाहिए, एक बेस्ट कोई नहीं हो सकता है. सभी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं और एक के बाद एक और अच्छे हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मार्क्स कैसे देना. बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए तो भी अभी मार्क्स लिखने के लिए, कि जो आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, टू गुड. बहुत टॉपिक बहुत अच्छा था, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा 2-3 चीज़ें हैं, मैं जस्ट फीडबैक दे रहा हूँ. सीरियसली ऐसा कोई फ्लॉलेस था ये, लेकिन एक फीडबैक है. तो एक वर्चूज होते हैं, वर्चूज गुण, वो आपको अपने पेरेंट्स से, गुरु से, फ्रेंड्स से, पूर्वजों से, सराउंडिंग से मिलते हैं.
तो वो भी कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। तो वो एक पॉइंट आ सकता था कि व्हाट इज कैरेक्टर, वैल्यू, ऑनेस्टी, बिहेवियर एंड वर्चूज। वैल्यू एंड वर्चूज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नीति और नीयत ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी नीति क्या है बिजनेस करने की और मेरी नीयत क्या है। यानी जैसे मैं सीए बन रहा हूँ तो मेरे नीयत है क्या, मैं सीए बन रहा हूँ, किसी के फोर्स से मैं बन रहा हूँ, और नीति क्या है, मैं अगर नीयत तो है मैं सीए बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या रूल फॉलो कर रहा हूँ, क्या, तो वो एक दोनों क्योंकि गो हैंड इन हैंड होता है, वैल्यू एंड वर्चूज। सेकेंड, ये जो पहला प्रेजेंटेशन था ट्रस्ट और ये कैरेक्टर, ये एक दूसरे को कोरिलेट, वो वापस गो इन हैंड ऐसा है कि कैरेक्टर से ही ट्रस्ट बनता है। तो बहुत अच्छा था, आपने कंप्लीट भी किया। फिर मुझे वो ट्री का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, बहुत टू गुड। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आपका बेस अच्छा है तो आप ग्रो करोगे। आपका वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। सर ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैंने सबके लिए लर्निंग है, हैट्स ऑफ टू हिम, कि रामचंद्र जी का और रावण का एग्जाम्पल दिया कि एज ए इंडिविजुअल वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो आपने रियल केस स्टडी जो दिया, वहाँ पहले ट्रस्ट वालों ने किंगफिशर को लिया ट्रस्ट के लिए और आपने सत्यम को लिया। तो मैंने उनको, आपने शायद देखा नहीं होगा उनका प्रेजेंटेशन, मैंने उनको आपके पहले उन्होंने किंगफिशर का एग्जाम्पल दिया था ट्रस्ट के लिए, तो मैंने उनको सत्यम का एग्जाम्पल दिया था। और यहाँ पे किंगफिशर का एग्जाम्पल होना चाहिए था कैरेक्टर के लिए। तो आप दोनों ने शायद स्वैप कर दी एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। तो यह सत्यम का प्रॉब्लम है, कैरेक्टर अच्छा था जिसके लिए उसने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे से गलती होगी, तो वो ठीक है वो अल्टीमेटली। लेकिन किंगफिशर का एग्जाम्पल कैरेक्टर से था कि वह आज वो क्या थे और वो क्या उनका कैलेंडर बना रहे हैं, मॉडल्स को ले रहे हैं, एक्ट्रेस को ले रहे हैं, और वो अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से भटक गए थे। तो वो एग्जाम्पल था। युवराज सिंह मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर से ज़्यादा वो उनका उसका करेज और पर्पस, ये एग्जाम्पल सूट होता है। कैरेक्टर के लिए मैं धोनी को सिलेक्ट करूँगा कि कोई भी सिचुएशन रहे उसका नेचर, उसका कैरेक्टर सेम रहता है अंडर प्रेशर। वो इज़ द कूलेस्ट पर्सन। राहुल द्रविड़ हो, धोनी हो, वो लास्ट बॉल में अगर आपको 6 भी चाहिए और वो बना सकता है, वो एकदम, वो अगर बैटिंग कर रहा है तो वो एकदम कूल है। हार गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैरेक्टर है कि और स्टार्टिंग में है। और कैरेक्टर का बेस्ट एग्जांपल आपको लेना है तो वैभव, कल भी मैंने एग्जांपल दिया वैभव सूर्यवंशी, उसका कैरेक्टर ये कि बॉस मैं मारूंगा ही, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो कोई भी हो, मैं तो मारूंगा। तो उसके कैरेक्टर की वजह से उसने डिस्टर्ब कर दिया लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया बॉलर का कि यार ये सामने ये बंदा है, ये बच्चा है, मेरा जीवन का सारा कमाया हुआ खत्म कर दे रहा है, ये अगर इसने 6 मारा तो फर्स्ट बॉल तो उसको ऐसा ही देख के डाल रहा है कोई भी कि ये इसने 6 मारा तो मैं तो खत्म हूँ। उसका फर्स्ट डे से फर्स्ट बॉल से 6 हिट करने का जो कैरेक्टर है वो एग्जाम्पल बेस्ट था। ये जो युवराज सिंह का कैरेक्टर, ये पर्पस का कैरेक्टर कि मेरा देश की आज मुझे जरूरत है और मुझे शायद कुछ भी हो, मैं तो कुछ ब्लड की वॉमिट क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मेरा पर्पस है मेरे टीम को जिताना। वो टीम स्पिरिट का, पर्पस का, करेज का और बाउंस बैक का, नेवर टू गेट फेलियर का एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, मेरा कोई स्टार्ट बहुत अच्छा था, श्लोक से किया, बहुत अच्छी बात है, अपने संस्कृति को ध्यान रखते हैं और क्लोज भी आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत टू गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Presentation was amazing, but there is this thing. नहीं फील भी नहीं हुआ कि कोई अटक रहा है। एंड सेकंड, तो अच्छा बोल रहा था बट यू गिव हिम क्वाइट फ्यू लाइन्स, मतलब कोई रीज़न था बिकॉज ही वाज क्वाइट गुड एट स्पीकिंग। एक्चुअली अब मतलब पहले ऐसा डिसाइड था कि वो वीडियो शूट करें। ओके, बिकॉज यू कैन स्पीक क्वाइट वेल, तो बहुत कम बोला आपने उसके अंदर, बट गुड। अपने नेक्स्ट इसके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े रेज हो रहे हैं, बात ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि कल मैंने पूरा बता चुका हूँ। तो आई होप एक बार जजेस के लिए अपने जोरदार तालियां हो जाए।